Hello everyone, let's start with a new chapter of pharmacology, that is the central nervous system. So in central nervous system, first of all, we're discussing about the sedatives and hypnotics, followed by the Parkinsonism, anti-epileptic drugs, psychiatric illness, alcohol, opioids, and all the other miscellaneous topics. So first of all, let's start with the sedatives or hypnotics. So we have to understand the basic difference between why we call certain drugs as sedatives and why the same drug is referred to as hypnotics. So basically the difference comes in the dose. Okay, the word sedative means it induces the calmness in a body. When a person calms down due to effect of a drug, that is called the seduction effect of a drug, or the drugs are referred to as sedatives. So sedatives are basically जो ड्रग्स हैं जो सुस्ती लाएं, ठीक है, एक पर्सन को सुस्ती लाएं तो उन्हें बोलते हैं हम sedatives, while the hypnotics are drug that induce sleep. The same drug will be called the sedative when it is in low concentration and induce the calmness, and the same drug will be called hypnotic when it is in higher concentration and induce sleep. So first of all, you have to understand how the calmness is induced in the person's body. So basically the major inhibiting neurotransmitter in the central nervous system is the GABA, that's the gamma aminobutyric acid. So basically what happens, GABA receptors are present in the some channels. So GABA receptors are basically the acting on the ion gated channels or ligand gated ion channels, and when GABA binds to the receptors, it helps in the entry of the chloride ion. And chloride ion, what it does, it basically makes the cell hyperpolarized. So the cell cannot be depolarized and the inactive stage occur in the central nervous system, or the conduction of the nerve impulses is decreased, basically which leads to the depression of the central nervous system. So basically all those drugs which will actually promoting the action of the GABA will actually do the function of the sedatives or the hypnotics. So we have got two classes of drugs which basically increase the GABA in our body, that is the barbiturates and the benzodiazepines. Barbiturates and another class of drugs are called the benzodiazepines. These two drugs receptors are also present on the same ligand, and they help in the hyperpolarization of the cell. How this happens, let us know. When barbiturates bind to this receptor on the same channel, it acts like GABA and it helps in the incoming of the chloride, that basically helps in the hyperpolarization of the cell. Basically it is a GABA mimetic drug. While the benzodiazepine, when they bind to the receptors, they do not increase the intake or the entry of the chloride, but basically they helps in the GABA to bind. Okay, they on their own do not helps in the entry of the chloride, but they promote the binding of the GABA to its own receptor. Basically GABA, actually there are two types of GABA receptors. They are basically of two types, GABA A receptor and GABA B receptor. So basically here we have the GABA A receptor, and what is the function of the GABA B receptor I will tell you in a separate video. Till now what we have studied is that basically sedatives वो ड्रग होते हैं जो हमने बॉडी में सुस्ती लाएं और that induce the calmness, hypnotics that induce the sleep. Okay, so sedatives जो हमारे पास या hypnotics जो हैं हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं, बार्बिट्रेट्स या फिर बेंजोडायजेपिन्स. बार्बिट्रेट्स उसी रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं जिस पे हमारा GABA एक्ट करता है, और दे हेल्प इन द एंट्री ऑफ द क्लोराइड. बट व्हाट डज द बेंजोडायजेपिन्स basically they act on the receptor but they do not help in the entry of chloride. In turn they help the GABA to bind to its GABA A receptor, which in turn helps in the entry of the chloride. So basically it has an indirect effect on this receptor, while the barbiturates has a direct effect on this receptor and promote the hyperpolarization of the cell by the entry of the chloride.
तो बेसिकली बार्बिट्रेट्स कैसे ऐड करते हैं, वो सेम गाबा के ऐड करते हैं और हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ द क्लोराइड। बेसिकली चैनल को ही खोल देते हैं, क्लोराइड चैनल को ओपन कर देते हैं जिससे क्लोराइड एंटर कर दे। तो ये क्या है, बार्बिट्रेट्स आर बेसिकली द गाबा माइमेटिक। पर जबकि व्हाट आर बेंजोडाइजेपिन, दिस आर बेसिकली द फैसिलिटेटरी, गाबा फैसिलिटेटरी। बेंजोडाइजेपिन क्या करते हैं, दे बेसिकली हेल्प्स द गाबा टू बाइंड टू इट्स रिसेप्टर, दे डू नॉट डायरेक्टली हेल्प्स इन द ओपनिंग ऑफ दिस चैनल। ओके, so this basic difference you should know about the functioning of the barbiturates and the benzodiazepine. Other points you should know that barbiturates increase the duration of opening of this channel. अब इसको थोड़ा समझते हैं। अब सपोज GABA is binding to its receptor and in 1 minute it opens the receptor 5 times for 2 millisecond each. 2 मिलीसेकेंड ईच। सो नॉर्मली जब भी गाबा बाइंड करता है ये रिसेप्टर को 1 मिनट में 5 बार ओपन करता है, और जब भी ओपन करता है 2 मिलीसेकेंड के लिए करता है। ठीक है, 1 मिनट में 5 बार और हर बार सिर्फ 2 मिलीसेकेंड के लिए, यानी कि 1 मिनट में ये 10 मिलीसेकेंड के लिए ओपन होता है। ठीक, पर जब बार्बिट्रेट्स इससे बाइंड करता है ये बेसिकली ये क्या करता है, हर बार 4 सपोज ये ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए ऐड करवाएगा, यानी होगा तो ये 1 मिनट में 5 ही बार ओपन, पर हर बार जब ये ओपन होगा ये सपोज 4 मिलीसेकेंड के लिए ओपन होगा। सो दैट क्लोराइड चैनल विल ओपन द सेम 5 times in 1 minute, but basically it will open for more duration, that's around 4 millisecond. These are basically the hypothetical values. But the benzodiazepines act, they increase the frequency of opening. The gate will open for same 2 millisecond, but suppose in 1 minute it will open for 8 times. Okay, the gate is opening for 2 millisecond, but in 1 minute it's opening for 8 times, which is the more than the normal. So basically barbiturates increase the duration and the benzodiazepines they increase the frequency of opening of channels. This one more difference you should know. Next difference is they basically barbiturates are induced by different enzymes. इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है बेसिकली इट्स हेल्प बाय द हेल्प ऑफ द माइक्रोसोमल एंजाइम्स, सो इट इज़ इंड्यूस्ड बाय डिफरेंट ड्रग्स। सो इंड्यूसर्स स्टिमुलेट द बार्बिट्रेट्स, वाइल जो बेंजोडाइजेपिन दे आर नॉट, द मेटाबॉलिज्म इज नॉट कंट्रोल्ड बाय अदर ड्रग्स। Next difference you should know is that addiction chances of barbiturates are very much higher. They are very much addictive, while benzodiazepines they are less addictive. Next difference is that barbiturates may cause amnesia. Amnesia मतलब होता है loss of memory. और loss of memory ना 2 टाइप की हो सकती है। Amnesia can be of 2 types. Either it can be retrograde, या फिर ये हो सकता है एंटेरोग्रेड। अब रेट्रोग्रेड मतलब क्या होता है, ओल्ड। तो क्या इन दिस टाइप ऑफ एमनेशिया, रेट्रोग्रेड एमनेशिया, द पर्सन फॉरगेट्स ऑल इट्स पास्ट, जबकि एंटेरोग्रेड में क्या होता है, जब तक ड्रग ऐड कर रहा है तब तक उसको कुछ याद नहीं रहेगा, बाकी उसको सब पुराना याद रहेगा। ठीक है, तो द पर्सन फॉरगेट्स ओनली दोज activities that are occurring when the drug is in action. So which type of amnesia does the barbiturates cause? It causes basically the anterograde amnesia. And one more last point that you should know about the barbiturates is that there is no antidote for the barbiturate poisoning. There is no antidote. What about the benzodiazepines? They do not cause amnesia, or if they cause for only a minor as compared to the barbiturates. Okay, and there is antidote available for the benzodiazepines poisoning, which is called that's antidote is present, which is very important drug, flumazenil. So make it as VIP point. Flumazenil is the antidote for benzodiazepines.
अब यहाँ पर हमने देखा कि बार्बिट्रेट से कितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इससे एडिक्शन हो सकता है, एंजाइम से रिड्यूस हो सकता है, या एमनीशिया क्रॉस कराता है, और इसका कोई एंटीडोट भी नहीं है। इसलिए वी जनरली डू नॉट प्रेफर बार्बिट्रेट्स फॉर द नॉर्मली यूजिंग फॉर द सेडेटिव्स और द हिप्नोटिक्स। सो वी प्रेफर बेंजोडाइज़ेपिन ओवर बार्बिट्रेट्स फॉर द सेडेक्शन और द हिप्नोटिक एक्शन ऑन द बॉडी। सो हम जनरली बार्बिट्रेट्स को हम प्रेफर नहीं करते, पर फिर भी हम दो बार्बिट्रेट्स होते हैं जो बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, वो हैं जो दो मोस्ट कॉमनली यूज बार्बिट्रेट्स दे आर द फिनोबार्बिटोन एंड थायोपेंटोन। सो फिनोबार्बिटोन होता है, इसका एक और यूज़ है, बेसिकली इट इज़ यूज्ड इन द एपिलेप्सी। So besides its sedative action or the hypnotic action, it is used in epilepsy, and thiopentone is used as a general anesthesia. It is highly lipid soluble, तो इसका जो एक्शन होता है बहुत ही फास्ट आ जाता है, और इसको हम IV और इंजेक्ट करें किसी पर्सन को तो बहुत ही जल्दी एनेस्थेटिक एक्शन इसका शो होने लगता है। सो these are the two barbiturates which are commonly used, but we do not prefer barbiturates for its sedative or hypnotic action due to its enzyme induction, addiction and amnesia. Apart from this, there are other points that you should know about the benzodiazepines. Benzodiazepines are basically they are long acting sedatives. So benzodiazepines, they are longer acting as compared to the barbiturate, that's why they used as a sedative, but they are contraindicated in elderly and इन लीवर फेलियर। अब एल्डरली में हम क्यों नहीं प्रेफर करते बेंजोडाइज़ेपिन्स फॉर एज ए सेडेटिव्स? बिकॉज जो एल्डरली होते हैं दे आर मोर ससेप्टिबल और मोर सेंसिटिव टू द सेडक्शन एक्शन, दैट्स वाई। अब एल्डरली को हम सपोज हमने सेम डोज दिया जैसे कि हम नॉर्मल एडल्ट्स में दे रहे हैं, तो उसमें जो इफेक्ट आएगा वो ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल एडल्ट, दैट्स वाई वी डो नॉट प्रेफर the benzodiazepine as sedatives in case of the elderly as well as not in also in the liver failure. liver failure है तो बेसिकली क्यों नहीं प्रेफर करेंगे? बेंजोडाइजेपिन का मेटाबॉलिज्म होता है और वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, तो फिर दे विल remain in the body for longer duration and the seduction action will be much more for more duration as compared to the normal adult. So let's learn some examples of the benzodiazepines which is commonly used as the sedatives. So examples, they are the diazepam, flurazepam, nitrazepam और फ्लूनाइट्राज़ेपाम। बेसिकली यहाँ पर है फ्लूनाइट्राज़ेपाम, ठीक है। ये सारे कॉमनली यूज सेडेटिव्स हैं, बट इनके साथ जो बेंजोडाइज़ेपिन्स है इनके साथ एक प्रॉब्लम है। एंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? डायज़ेपाम फॉर्म और द मोस्ट ऑफ द बेंजोडाइज़ेपिन दे फॉर्म एक्टिव मेटाबोलाइट। सपोज डायज़ेपाम इट फॉर्म ऑक्साज़ेपाम, ठीक है। तो इनका जो मेटाबोलाइट होता है वो भी एक्टिव होता है, सो बेसिकली दे एक्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। सो बेसिकली द एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट टू द लॉन्ग एक्शन सेडेटिव ऑफ द बेंजोडाइज़ेपिन्स, but so this is basically a problem. Suppose we have to induce sedation only for few hours and we have given the dose accordingly, but when the diazepam or the flurazepam or nitrazepam will be metabolized, it will also form an active metabolite which is also a sedative, so the duration of action will be much more than the what we need. So we have founded some drugs where we have discovered some drugs which do not form active metabolite and therefore they act for the desired duration of time and basically are the shorter acting as compared to the other normally found benzodiazepines. So let's learn about. So the benzodiazepines that do not form active metabolite you can learn by a mnemonic which is basically STOLE, STOLE. तो इसका क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? STOLE, S for short acting benzodiazepines. बेसिकली दे एक्टिव मेटाबोलाइट इनका फॉर्म नहीं हो रहा, तो ये दे विल बी एक्ट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन. सो द बेंजोडाइज़ेपिन दैट एक्ट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन आर टेमाज़ेपाम,
T for 3 or you can say triazolam, ऑक्साजिपाम। ऑक्साजिपाम क्या है? ये बेसिकली मेटाबोलाइट है हमारे किसका? डायजिपाम का। सो हम अगर मेटाबोलाइट ही सीधा किसी पर्सन को दे दें तो वो भी ऐड करेगा शॉर्टर ड्यूरेशन एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल ड्रग। तो डायजिपाम की जगह हम ऑक्साजिपाम प्रेफर करेंगे इफ़ यू वांट ए बेंजोडाइज़ेपिन शुड एक्ट फॉर ए शॉर्टर ड्यूरेशन। L for lorazepam and E for एस्टाजोलैम। सो यहाँ पर 2 जोलैम है, एस्टाजोलैम एंड ट्रायाजोलैम। अब इन बेंजोडाइज़ेपिन का क्या क्या फ़ायदा है? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ऑल दिस बेंजोडाइज़ेपिन? बेसिकली दे डू नॉट फॉर्म एक्टिव मेटाबोलाइट, दैट्स वाई दे प्रेफर और दे एक्ट फॉर द शॉर्टर ड्यूरेशन, शॉर्ट एक्टिंग। सो हम चाहते हैं कि एक्शन का थोड़े कम देर के लिए हो तो हम इनको प्रेफर करेंगे। और इनसे हैंगओवर सिम्टम्स भी नहीं आते हैं। हैंगओवर सिम्टम्स आर एब्सेंट। दे कैन बी गिवन इन एल्डरली एंड इन द लीवर फेलियर। तो बेंजोडाइज़ेपिन से क्या प्रॉब्लम थी? इनकी सही प्रॉब्लम थी दे कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एल्डरली एंड लीवर फेलियर, but this short acting benzodiazepine which do not form active metabolite can be given in elderly as well as liver failure. So all the problem that was with the normal benzodiazepines have overcome by this short acting benzodiazepines. अब हमने बेंजोडाइज़ेपिन या बार्बिट्रेट्स का जो अपना डोज है वो हमने बढ़ा दिया, तो अब सिडक्शन की जगह क्या आएगा? हिप्नोसिज्म आएगा, यानी कि हिप्नोटिक एक्शन विल बी मच मोर एज़ कम्पेयर टू द सेडेटिव एक्शन, और हम इसको डोज को बढ़ा दें। पर इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है बेंजोडाइज़ेपिन या बार्बिट्रेट्स के साथ, दे इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ स्लीप बट दे डिक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ स्लीप। इसलिए हमें स्लीप के बारे में थोड़े पॉइंट्स पता होने चाहिए ताकि हमें बहुत अच्छे से बात समझ में आए कि क्वालिटी और क्वांटिटी से क्या मेरा मतलब है। तो स्लीप बेसिकली स्लीप में 2 फेजेस होते हैं, रैपिड आई मूवमेंट या रैम और नॉन रैम। ठीक, इसमें 2 फेजेस आते हैं स्लीप में। रैम में सपोज नॉर्मली जो रैम है वो 10 मिनट के लिए होता है, और नॉन रैम में क्या होता है? डिफरेंट फेजेस आते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। और नॉर्मली क्या हो रहा है? सपोज़ ये जो हमारा नॉन रैम में फेज़ 1 है 5 मिनट के लिए, ये 10 मिनट के लिए, ये 15 मिनट के लिए, और ये फिर दोबारा 10 मिनट के लिए। जो हमारे बेंजोडाइज़ेपिन्स होते हैं दे इंक्रीज द रैम स्लीप और नॉन रैम स्लीप बट दे डू नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली। सपोज जो रैम स्लीप थी ये बेंजोडाइज़ेपिन्स के बाद क्या हो गई? सपोज 15 मिनट के लिए हो गई। नॉन रैम में फेज़ 1 10 मिनट, ये 20 मिनट, 30 मिनट, ये 15 मिनट। तो दे डू नॉट इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ द ईच फेज, दैट्स वाई द क्वालिटी ऑफ स्लीप इज़ डिक्रीज्ड। अब क्वालिटी ऑफ स्लीप डिक्रीज हो गई, इससे क्या इन्फ्लुएंस आया? पर्सन बोलेगा, पेशेंट बोलेगा नींद तो काफ़ी देर के लिए 6 घंटे या 8 घंटे के लिए आई, बट उस उठने के बाद भी उसको लगेगा कि वो अच्छे से सोया नहीं है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम विद द बेंजोडाइज़ेपिन्स। तो हमने कुछ और ऐसी ड्रग निकाली, हमने इन्वेंट की या डिस्कवर की जिसमें हमारी क्वांटिटी तो उतनी रही है पर क्वालिटी भी ख़राब नहीं हो रही है, तो उन्हें हम बोलते हैं जेड ड्रग्स। So Z drugs are those drugs which do not decrease quality of sleep. So basically quality of sleep is not compromised. तो इन ड्रग्स का नाम भी Z से स्टार्ट होता है, इसलिए हम Z ड्रग्स बोलते हैं। सो ये है ज़ोलपीडेम, ज़ेलेप्लोन, ज़ोपिक्लोन। अब इसमें एक जो नई ड्रग आई है वो तो Z से स्टार्ट नहीं हो रही है, बेसिकली ये इसी का एक मॉडिफिकेशन है ज़ोपिक्लोन का, जिसे बोलते हैं हम ज़ोपिक्लोन, पर ये भी Z ड्रग्स में आता है। तो बेसिकली दे डू नॉट डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ द स्लीप एंड दे आर नॉन एडिक्टिव। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
आपको बताया था बेंजोडाइज़ेपिन्स और बार्बिट्रेट्स में दोनों में हमारा एडिक्शन होता है। बार्बिट्रेट्स में ज़्यादा होता है, बेंजोडाइज़ेपिन्स में कम होता है। बट जो जेड ड्रग्स हैं इनका कोई भी एडिक्टिव एक्शन नहीं होता। सो बेसिकली दे आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंसोम्निया। ओके, सो बेसिकली नॉन एडिक्टिव है तो इनमें एडिक्शन नहीं होता। बट अगर सपोज किसी पेशेंट ने इसके डोज जो है बहुत ज़्यादा खा लिया, यानी कि टॉक्सिसिटी या पॉइजनिंग हो गई हमारी जेड ड्रग्स की, तो इनका जो एंटीडोट होता है वो सिमिलर होता है जो हमारा नॉर्मल जो हमारे बेंजोडाइज़ेपिन्स का होता है, जिसे बोलते हैं हम फ्लूमाजेनिल। तो फ्लूमाजेनिल इज़ द एंटीडोट फॉर द जेड ड्रग्स। अब इसके अलावा 2 और ड्रग्स के नाम को याद होने चाहिए। एक तो है ओरेक्सिन एंटागोनिस्ट और दूसरा है मिलेटोनिन अगोनिस्ट। ये बात सबको पता होगी, जो मिलेटोनिन होता है ये इंड्यूस स्लीप। ओके, सो मिलेटोनिन अगोनिस्ट अगर दे दें तभी स्लीप का हमारा बॉडी में इंडक्शन हो जाएगा, यानी कि पर्सनली इसको हम हिप्नोटिक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हम कभी कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किस में इस्तेमाल करते हैं? शिफ्ट वर्कर्स में। सपोज जो रात की ड्यूटी कोई सिक्योरिटी गार्ड में काम करता है, सो दिन में सोना है और रात में जागना है, तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम जेट लैग में इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज़ आप इंडिया से अमेरिका गए, दोनों का हमारा जो टाइम जोन है बहुत अलग है। यहाँ पर सपोज़ रात है, वहाँ पर दिन है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम भी मेलाटोनिन देते हैं। और जो ड्रग जो मेलाटोनिन की तरह ऐड करते हैं, एक अगोनिस्ट है उसका, उसे हम बोलते हैं रेमेल्टियोन। इसके नाम में इसका सारा फंक्शन है। मिलेटोनिन अगोनिस्ट, बेसिकली मेलाटोनिन रिसेप्टर अगोनिस्ट। बट इसका एक प्रॉब्लम है, हम इसको ओरल तो दे सकते हैं पर इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो बहुत ही कम ही, सिर्फ 2% है। तो बेसिकली वी हैव टू इंक्रीज द डोज सो दैट सफिशिएंट अमाउंट शुड एंटर द बॉडी। वो पॉइंट हो गया, इट इज़ ऑल्सो नॉन एडिक्टिव। सो मेलाटोनिन जो अगोनिस्ट है, ये जो कि हमारा रेमेल्टियोन है, ये भी नॉन एडिक्टिव है। अब ये ओरेक्सिन क्या है? ओरेक्सिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि हमारे वेकफुलनेस हमारे बॉडी में इंड्यूस करता है, यानी कि हमें जगा के रखता है ओरेक्सिन प्रोटीन। और हम इसका एंटागोनिस्ट दे दें तो हमारी स्लीप इंडक्शन हो जाएगी। सो इफ यू गिव ओरेक्सिन रिसेप्टर अगोनिस्ट, इट विल इंड्यूस बेसिकली स्लीप। तो हमारा जो ड्रग जो इसकी तरह ऐड करता है या जो इस रिसेप्टर पे ऐड करता है वो है सुवोरेक्सेंट, यानी कि ओरेक्सिन एंटागोनिस्ट दैट इंड्यूस स्लीप। ठीक है, ओरेक्सिन एंटागोनिस्ट विच इंड्यूस स्लीप। So this was all about the hypnotics and the sedatives. If you like the video, please hit like button and do subscribe to our channel.